اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے مدینے میں داخل ہوئے تو ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینے کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکلا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پیغام پڑھا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت سنا دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی، اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور تھی۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی بہروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جافا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ رسول اللہ نے کہا، کیوں عباس، کیا تم اس لیے مکہ سے بھاگ نکلے ہو کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر ہے، اور میں آپ کی اطاعت قبول کرنے کو مدینے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میری نہیں عباس، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ عباس بن عبد المطلب آپ علیہ السلام سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ علیہ السلام بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ وہ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ علیہ السلام کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ علیہ السلام کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکے جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ علیہ السلام گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینے سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے، لیکن اسے اپنے ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔
एक रोज वो इस कदर बेचैन हुआ कि घोड़े पर सवार होकर मक्के से बाहर चला गया। उसकी कोई हिस्स उसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है। उसके दिल पर घबराहट तारी होती चली गई। उसने अपने आप से कहा कि होगा यही कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ जाएंगे। ये सोचकर वो ये देखने के लिए मदीने के रास्ते पर हो लिया कि मदीना की फौज आ तो नहीं गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा की बू भी बदली सी है। वो इन सोचों में गुम मक्का से चंद मील दूर निकल गया। उसे अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु एक खच्चर पर सवार अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। उसने पूछा, अब्बास, क्या तुम अपने पूरे खानदान के साथ नहीं गए थे? वापस क्यों आ गए हो? अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे खानदान की मत पूछ अबू सुफियान। मुसलमानों के 10,000 प्यादों, घुड़सवारों और शुतर सवारों का लश्कर मक्का के इतना करीब पहुंच चुका है जहां से छोड़े हुए तीर मक्का के दरवाजों में लग सकते हैं। क्या तू मक्का को इस लश्कर से बचा सकता है? किसी को मदद के लिए बुला सकता है? सुलह का मुआहिदा तेरे सालारों ने तोड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मैं अल्लाह का रसूल मान चुका हूँ, सबसे पहले तुझे कत्ल करेगा। अगर तू मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले तो मैं तेरी जान बचा सकता हूँ। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, मैं जानता था मुझ पर यह वक्त भी आएगा। चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। शाम के बाद अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को साथ लिए हुए मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैंप के पहरेदारों को देखते फिर रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो आग बबूला हो गए। कहने लगे कि अल्लाह के दीन का ये दुश्मन हमारे पड़ाव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर आया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ दौड़ पड़े। वो अबू सुफियान के कत्ल की इजाजत लेने गए थे, लेकिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी पहुंच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुबह आने को कहा। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू सुफियान को रात अपने पास रखा। सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा, अबू सुफियान, क्या तू जानता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और वही माबूद है और वही हम सब का मददगार है? अबू सुफियान ने कहा, मैंने ये जरूर मान लिया है कि जिन बुतों की मैं इबादत करता रहा हूँ वो बुतों के सिवा कुछ भी नहीं, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर ये क्यों नहीं मान लेता कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ जो माबूद है? अबू सुफियान हारी हुई सी आवाज में बोला, मैं शायद ये ना मानूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहर भरी आवाज में कहा, अबू सुफियान, क्या तू मेरी तलवार से अपना सर तन से जुदा करवाना चाहता है? अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान एक कबीले का सरदार है, बावकार और खुददार है, ये मुल्तजी होकर आया है। अबू सुफियान पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसने बेख्तियार कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने मान लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ मक्का में ऐलान कर दो कि मक्का के वो लोग मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहेंगे जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग भी महफूज रहेंगे जो अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहेंगे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया कि मक्का में इक्रिमा और सफ़वान जैसे माहिर और दलेर सालार मौजूद हैं। वो मुकाबला किए बगैर मक्का पर कब्जा नहीं होने देंगे। ऊंट बहुत तेज दौड़ा चला जा रहा था। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सवार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उज़ा और हुबुल की कसम, मदीने वालों का लश्कर करीब ही पड़ाव किए हुए है। मैंने अपने सरदार अबू सुफियान को वहां जाते हुए देखा है। अहले कुरैश होशियार हो जाओ, मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। उसने ऊंट को रोका और उसे बिठाकर उतरने की बजाय उसकी पीठ से कूद कर उतरा। उसकी पुकार जिसने सुनी वो दौड़ा आया। वो घबराहट के आलम में यही कहे जा रहा था कि मदीना का लश्कर आन पहुंचा है और अबू सुफियान को उस लश्कर के पड़ाव की तरफ जाते देखा है। मक्का के लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले गए। एक मुअम्मर आदमी ने उससे पूछा, अबू हसना, तेरा दिमाग सही नहीं या तू झूठ बोल रहा है? शुतर सवार अबू हसना ने कहा, मेरी बात को झूठ समझोगे तो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंचोगे। किसी से पूछो हमारा सरदार उधर क्यों गया है। उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, ए कबीला कुरैश, मुसलमान अच्छी नीयत से नहीं आए। अबू हसना का वावेला मक्का की गलियों से होता हुआ अबू सुफियान की बीवी हिंद के कानों तक पहुंचा। वो आग बबूला होकर बाहर आई और उस हुजूम को चीरने लगी जिसने अबू हसना को घेर रखा था। उसने अबू हसना का गिरबान पकड़कर कहा, अबू हसना, मेरी तलवार मुसलमानों के खून की प्यासी है। तू मेरी तलवार से अपनी गर्दन कटवाने क्यों आ गया है? क्या तू नहीं जानता कि जिस पर तू झूठा इल्जाम थोप रहा है वो मेरा शौहर और कबीले का सरदार है? अबू हसना ने कहा, अपनी तलवार घर से ले आ खातून।
लेकिन तेरा शौहर आ जाए तो उससे पूछना कि वो कहाँ से आया है। हिंद ने कहा, और तू कहता है कि मोहम्मद लश्कर लेकर आया है। अबू हसना ने कहा, खुदा की कसम मैं वो कहता हूँ जो मैंने देखा है। हिंद ने कहा, अगर तू सच कहता है तो मुसलमानों को मौत इधर ले आई है। उस वक्त अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ रहे थे। अहले मक्का एक मैदान में जमा हो चुके थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहले कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं धकेलती आगे चली गई। उसके चेहरे पर गजब और कहर था। उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका, अपनी बीवी की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी। बुलंद आवाज में कहा, अहले कुरैश, पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मुझे तुम्हारा वक़ार अजीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा लश्कर ले आए हैं जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो उस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ गई है। तुम्हारे भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। लोगों में से किसी की आवाज आई, हमें ये बता हमारे सरदार के हम क्या करें। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। एक और आवाज उठी, खुदा की कसम मुसलमान हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे। वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। उहुद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीरा फाड़ा था। हिंद अलग खड़ी फुनकार रही थी। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तुम सब की सलामती की जमानत लेकर आया हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम में से जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर तशद्दुद से महफूज रहेंगे। किसी ने पूछा, क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके दरवाजे बंद रहेंगे उन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ उसे जानेंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतर आए और बोले, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। कुरैश के मशहूर सालार इक्रिमा ने ललकार कर कहा, अबू सुफियान, हम अपने कबीले के कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्छियों से करेंगे। दूसरे दलेर और तजुर्बाकार सालार सफ़वान ने कहा, हमारे तीर उनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हालात को देखो इक्रिमा, होश की बात करो सफ़वान, वो हम में से हैं। आज खालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिला है तो मत भूलो कि उसकी बहन तुम्हारी बीवी है। क्या तू अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा? क्या तुझे याद नहीं रहा कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है? क्या तू यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर मदीना गया तो मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा ने मेरे नीचे से चारपाई पर बिछी हुई चादर खींच ली थी कि इस मुकद्दस चादर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं बैठ सकता। बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। सफ़वान, मक्का के लोगों में इक्रिमा और सफ़वान और 2-3 और आदमियों के सिवा और किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मौरखों ने लिखा है कि कबीला कुरैश की खामोशी जाहिर करती थी कि उन लोगों ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा कबूल कर लिया। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर था, मगर उसकी बीवी हिंद जो अलग खड़ी फुनकार रही थी तेजी से अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ी और उसकी मूछें जो खासी बड़ी थीं अपने दोनों हाथों में पकड़ ली। हिंद ने अबू सुफियान की मूछें जोर जोर से खींचते हुए कहा, मैं सबसे पहले तुझे कत्ल करूंगी, बुज़दिल बुढ़े, तूने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी। उसने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की मूछें छोड़कर उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और लोगों से मुखातिब होकर बोली, तुम लोग इस बूढ़े को कत्ल क्यों नहीं कर देते जो तुम्हें मुसलमानों के हाथों जलील ख्वार करने की बातें कर रहा है। मौरिख मगाजी और इब्ने साद लिखते हैं कि हिंद ने अपने खावंद के साथ इतना तौहीन आमेज सुलूक किया तो लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। अबू सुफियान जैसे बुत बन गया। इक्रिमा और सफ़वान उनके दरमियान आ गए। सफ़वान ने कहा, हम लड़ेंगे हिंद, इसे जाने दो, इस पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया है। अबू सुफियान खामोश रहे। शाम तक अहले कुरैश 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे। ज्यादातर लोग लड़ने के हक में नहीं थे, बाकी सब इक्रिमा, सफ़वान और हिंद का साथ दे रहे थे। शाम के बाद सफ़वान अपने घर गया।
उसकी बीवी जिसका नाम फाखिता था खालिद रजी अल्लाह अन्हु की बहन थी। वो अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बातें सुन चुकी थी। फाखिता ने सफवान से पूछा, क्या मैंने ठीक सुना है कि तुम अपने कबीले के सरदार की नाफरमानी कर रहे हो? सफवान ने कहा, अगर फर्माबरदारी करता हूँ तो पूरे कबीले का वक़ार तबाह होता है। कबीले का सरदार बुज़दिल हो जाए तो कबीले वालों को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। सरदार अपने कबीले के दुश्मन को दोस्त बना ले तो वो कबीले का दोस्त नहीं हो सकता। फाखिता ने पूछा, क्या तुम मुसलमानों का मुकाबला करोगे? वो बोला, तो क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारा शौहर अपने घर के दरवाजे बंद करके अपनी बीवी के पास बैठ जाए और दुश्मन उसके दरवाजे के सामने दंदनाता फिरे? क्या मेरे बाजू टूट गए हैं? क्या मेरी तलवार टूट गई है? क्या तुम उस लाश को पसंद नहीं करोगी जो तुम्हारे घर में लाई जाएगी और सारा कबीला कहेगा कि ये है तुम्हारे खावंद की लाश जो बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया? या तुम उस शौहर को पसंद करोगी जो तुम्हारे पास बैठा रहेगा और लोग तुम्हें कहेंगे कि ये है एक बुज़दिल और बेवकार आदमी की बीवी जिसने अपनी बस्ती और इबादत गाह अपने दुश्मन के हवाले कर दी? तुम मुझे किस हाल में देखना पसंद करोगी? फाखिता ने कहा, मैंने तुम पर हमेशा फख्र किया है सफवान। औरतें मुझे कहती हैं कि तुम्हारा खावंद कबीले की आंख का तारा है, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। तुम्हारा साथ देने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। सुना है मदीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और अब मेरा भाई खालिद भी उनके साथ है। तुम जानते हो वो लड़ने मरने वाला आदमी है। सफवान ने कहा, क्या तुम मुझे अपने भाई से डरा रही हो फाखिता? फाखिता ने कहा, नहीं, मुझे खालिद मिल जाता तो मैं उसे भी यही कहती जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। वो मेरा भाई है, वो तुम्हारे हाथ से मारा जा सकता है, तुम उसके हाथ से मारे जा सकते हो। तुम एक दूसरे के मुकाबले में ना आओ। उसकी बहन और तुम्हारी बीवी, लाश तुम्हारी हो या खालिद की, मेरा गम एक जैसा होगा। सफवान ने कहा, ये कोई अजीब बात नहीं फाखिता। दुश्मनी ऐसी पैदा हो गई है कि बाप बेटे का और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रखूं तो? फाखिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम मेरे रिश्ते का ख्याल न रखो। कबीले का सरदार तुम्हें कह रहा है कि लड़ाई नहीं होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर लेंगे। फिर तुम लड़ाई का इरादा तर्क क्यों नहीं करते? तुम्हारे साथ बहुत थोड़े आदमी होंगे। सफवान ने कहा, मैं इताअत कबूल करने वालों में से नहीं हूँ। फाखिता ने कहा, फिर मेरी एक बात मान लो, खालिद के आमने सामने न आना। उसे मेरी माँ ने जन्म दिया है, हम दोनों ने एक माँ का दूध पिया है। वो जहाँ कहीं भी है, बहन यही सुनना चाहती है कि उसका भाई जिंदा है। मैं बेवा भी नहीं होना चाहती सफवान ने कहा, फिर अपने भाई से जाकर कह दो कि मक्का के करीब ना आए। वो मेरे सामने आएगा तो हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। फाखिता के आंसू सफवान के इरादों को जरा भी मुतजलजल न कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।